All right. Hello, hi, good afternoon, everyone. Hoping all of you are doing well. Let me know who all are here so that we can start our session. And एक thumbs up if the AV is clear or not. ऑडियो एंड वीडियो परफेक्टली फाइन है या नहीं, थोड़ा सा मुझे पहले इन्फॉर्म कर देना ताकि सेशन अपना स्मूथली चले फिर. ठीक है. Yesterday we had an orientation session where I introduced you with the proper plan, with the proper structure that we will be starting with and running with in our sessions. So today it is just an overview of the British literature. For example, how many ages do we have? And I'm very sure you have done your undergrad and postgrad in the paper, so you are already introduced with all of this. But before just we delve into the depth or into the details of our particular ages, let's just rewind what is there in our spectrum of British literature. All right? Okay. Let me know who all are there. Chaliye ji, moving ahead then. This is the major content that we have in the very first aspect. You get to see that we have the Anglo-Saxon period, which moves to the medieval era, and then we move forward to the age of the Renaissance, or the time or the flourishment that you got to see in the age of Renaissance, and then particularly from there we move forward to the age of Restoration. तो जो Anglo-Saxon period है, जो medieval era है, इस वक्त में कैसे play देखने को मिल रहे थे, या फिर इस वक्त पे कौन सी ट्राइब्स एग्जिस्ट कर रही थी. सो द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ ब्रिटेन, इफ आई वर टू आस्क यू द सेम क्वेश्चंस दैट हु आर द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ ब्रिटेन, आर देयर एनी सेल्टिक ट्राइब्स, और आर यू एक्वेंटेड विद एनी ऑफ द सेल्टिक ट्राइब्स. तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? हाय नयूबी, गुड आफ्टरनून. एवी इज वर्किंग फाइन, परफेक्ट. ओके देन वी जस्ट स्टार्टेड द सेशन. Great. So today what would be our major idea of this session is to introduce you with all the ages, along with that to move deeply into the Anglo-Saxon period, and just there we'll stop our session. ठीक है, चलिए then starting ahead. Anglo-Saxon period to the medieval era आपको पहले देखने को मिलता है, where you have some of the original inhabitants of Britain, जो कि आपके पास Celtic tribes है. Pre-Roman Britain भी हम उसे बोलते हैं. Pre-Roman क्यों है? Because after a certain point you got to see the invasion of Romans, जहाँ से दे एक्चुअली टुक द एंटायर कंट्रोल, सब कुछ उन्हीं के अंडर चल रहा था. बट ऑल ऑफ अ सडन देयर वाज द विड्रॉल ऑफ रोमन्स एज वेल, जहाँ पे पूरा का पूरा जो एरिया है वो पूरा डिस्ट्रक्शन में आ गया. इट वाज सॉर्ट ऑफ मिडल्ड डाउन कि अब क्या होगा. और उसी बीच में व्हेन देयर इज दिस वीकेस्ट पॉइंट एंड देन यू मेक अ हिट और यू मेक अ टर्न, देयर इज लाइकली वेरी मच एफर्ट्स दैट यू विल मेक अ सीट देयर, कि आपकी प्रेजेंस वहां पे काउंट हो जाएगी. सेम हैपेंड हियर ऑल्सो. And then that is how Anglo-Saxons invaded, and there was this invasion that you got to see in the Britain. सो पहला पॉइंट एंग्लो सेक्सन पीरियड का है, टू द मेडिवल इरा. इसके अंदर जो भी लिटरेचर आता है हम कवर करते हैं, राइट फ्रॉम योर बियोवुल्फ विच इज योर ओल्डेस्ट एपिक, मूविंग फॉरवर्ड टू विलियम लैंगलैंड, पर्ल, सी वॉन्डरर, सी फेरर, ऐसे कुछ पोएम्स और वर्क्स आपको देखने को मिलते हैं. देन वी मूव फॉरवर्ड टू द एज ऑफ रेनेसॉन्स, टू द रेस्टोरेशन. फिर आता है आपका एनलाइटनमेंट विच इज योर 18th सेंचुरी, एज ऑफ एनलाइटनमेंट, ऑगस्टन लिटरेचर. फिर आप आगे एज ऑफ पोप भी वहां पर पढ़ते हैं. फिर हम चलते हैं यहाँ से रोमांटिक लिटरेचर पर. देन वी हैव आवर विक्टोरियन लिटरेचर. विक्टोरियन के बाद आपका मॉडर्न है, पोस्ट मॉडर्न है और आपका कंटेम्प्रेरी है. Talking about it in detail is your first part, and there we move that we have the epic poem which is again heroic poetry. Anglo-Saxon literature जो है इस तरीके से flourish होता है, start होता है with a lot of heroism, with a lot of good deeds that have been done here. There's this monster into another city, into another kingdom, and then the one ruler has been going and fighting him down and making him get killed. So Beowulf ऐसे works आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं where there are a lot of victories done, lot of good deeds, lot of heroism is been presented into this period. ऐसे ही आपको कुछ पोएम्स देखने को मिलती हैं, जैसे केडमॉन की, साइन वुल्फ की. केडमॉन्स का हिम बहुत पॉपुलर है. इसी के साथ साथ दे रिप्रेजेंटेड द रिलीजन पार्ट. इस वक्त में भी आपको जो आइडिया ऑफ लव देखने को मिलता है, दैट वाज आल्सो नॉट वेरी मच अ कोर्टली लव दैट यू गॉट टू सी. इस तरीके से कोर्टली लव उस वक्त पे फ्लरिश नहीं हो रहा था. आपको जो वो लव भी देखने को मिलता है, दैट वाज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ अ रिलीजियस लव, इन द फॉर्म ऑफ अ स्पिरिचुअल लव. तो वो आपको यहाँ पे
फ्लरिश होता हुआ दिखता है, ब्लेंडिंग विद द थीम्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन थीम्स के साथ। इसी के साथ नेक्स्ट फिर आपका जब मिडिल इंग्लिश लिटरेचर आता है, आप देखोगे एंग्लो सेक्सन्स के वक्त में भी व्हेन रोमन्स केम इन, उसके बाद आप देखेंगे लेटिन लैंग्वेज वाज वेरी मच पॉपुलर एंड वाज यूज्ड इन अ मेजर डायमेंशन, क्योंकि किंग अल्फ्रेड का आपको वहां पे एक रूल देखने को मिलता है जहां से आपको आर्थुरियन रोमांसेस का एक टाइम फ्लरिश होता हुआ दिखता है। बट इवन आफ्टर दैट ऑल्सो यू गॉट टू सी व्हेन रोमन्स इन्वेडेड, जब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट आता है 1066 AD में, जिसे हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, उस वक्त में भी आपका फ्रेंच लैंग्वेज वॉज वेरी मच पॉपुलर बिकॉज द एंटायर लिटरेचर और द एंटायर एरिया वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड विद फ्रेंच। बट उसके बाद जो एक पीरियड आता है वेर यू गॉट टू सी द फ्लरिशिंग ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, जहां से आपको एज ऑफ चॉसर देखने को मिलता है, एंड देन देयर यू गॉट टू सी द रियल्म ऑफ चॉसर विद ऑल हिज वर्क्स एंड द अपब्रिंगिंग ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इनटू द ब्रिटेन, इनटू योर इंग्लैंड। पहले उसको एंजल्स लैंड बोलते थे बिकॉज इट वॉज मोस्टली acquainted with angels, but then it was retranslated, rewritten as England, जिसे भी मैं आपको अच्छे से लिखकर और फिर बताऊंगी, बट एक बार ओरली आप सुन लीजिए। चौसर का कैंटरबरी टेल्स आई एम वेरी श्योर इफ यू हैव डन योर एजुकेशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी या कहीं से भी किया है, आपने इनकी कुछ टेल्स जरूर पढ़ी होंगी, जैसे नन्स टेल, प्रीस्ट टेल। यहाँ पे आप जो टेल्स पढ़ते हैं, इवन इन आवर मास्टर्स ऑल्सो वी आर acquainted with some of the tales. कैंटरबरी टेल्स वन ऑफ द पॉपुलर वर्क्स, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसी के साथ साथ हमें विलियम लैंगलैंड का पियर्स प्लॉमिन भी देखने को मिलता है। इस वक्त पे जो एक लिटरेचर फ्लरिश हो रहा था, दैट वाज आल्सो वेरी मच इंक्लाइंड टुवर्ड्स एन एलिगोरिकल फिगर्स, जहाँ पे आपको क्रिश्चियन इन्फ्लुएंसेस देखने को मिलते हैं, क्रिश्चियन फिलोसफी आती हुई दिखती है, वेर यू हैव दीज कैरेक्टर्स हु आर वेरी एलिगोरिकल इन नेचर। देन वी हैव सर गवाइन एंड द ग्रीन नाइट, जहाँ पे एक शिवलरिक रोमांस आपको देखने को मिलता है। सो अगेन आर्थुरियन रोमांसेस का बहुत बोलबाला रहता है इस वक्त पे, रीटेलिंग्स होती है किंग आर्थर के स्टोरीज की। तो यहाँ पे गवाइन एंड ग्रीन नाइट में भी देयर इज दिस वन ऑफ द किंग आर्थर्स नाइट्स, एंड उनके ऊपर ये पूरी की पूरी स्टोरी आपको देखने को मिलती है। सो बेसिकली व्हाई आई हैव बीन इंट्रोड्यूसिंग यू विद ऑल ऑफ दिस, कि जब हम इन्हें डिटेल में करेंगे तो आपको एक प्रॉपर टेंटेटिव आइडिया जरूर याद रहे कि हम ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो उसका एक्चुअली में एक टाइमलाइन क्या है ना। तो टाइमलाइन याद रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको पता हो कि एग्जाम में से क्वेश्चंस भी आते हैं कि विक्टोरियन लिटरेचर पहले आया कि रोमांटिक लिटरेचर बाद में आया, और अभी भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस क्वेश्चन में गलती कर देते हैं, तो आपको नहीं करनी है, क्योंकि हम डे 1 ऑफ आवर ब्रिटिश लिटरेचर से ही इस चीज पे ग्रिप लेकर आ रहे हैं, है ना। Then we have the Renaissance age and then we move forward to the Restoration age. Renaissance में आपको कुछ ऐसे works देखने को मिलते हैं of Shakespeare. Shakespeare is into the realm here. This age of Shakespeare, the period of Shakespeare that is seen. First folio of Shakespeare, जिसका year आपसे question में पूछा जाता है. Shakespeare के works की chronological order आपसे पूछी जाती है. इनके hero, heroines, important episodes, ये सब आपसे पूछे जाते हैं. बट इस वक्त पे Renaissance के वक्त पे आपको Shakespeare देखने को मिलते हैं. क्रिस्टोफर मार्लो के प्लेस देखने को मिलते हैं, अगेन विच ऑल्सो रन्स, और द कैरेक्टर्स आर वेरी मार्लोवियन इन नेचर, या फॉस्टियन थीम्स आपको देखने को मिलती है। अगेन कमिंग बैक टू डॉक्टर फॉस्टर्स, अगेन प्रिस्क्राइब्ड इन योर अंडरग्रेड सिलेबस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जहां पे आपको दिस थीम ऑफ ग्रीड देखने को मिलती है, द थीम ऑफ नॉलेज एंड आउटरीचिंग एट इट्स मैक्सिमम, अगेन सिंबलाइजिंग विद द इकरस फॉल। तो मार्लोज प्ले, एडमंड स्पेंसर का फेरी क्वीन, आपका शेफर्ड्स कैलेंडर, ये कुछ वर्क्स आपको इस एज में देखने को मिलते हैं रेनेसॉ में, वेयर देयर इज आल्सो द टॉक ऑफ द एज ऑफ पेस्टोरल। काफी सारे राइटर्स ने पेस्टोरल रोमांसेस लिखे हैं, अगेन यू नो टेकिंग द आइडल्स ऑफ द पास्ट ऑफ द शेफर्ड्स हियर एंड उनकी लाइव्स आप एक्सप्लेन कर रहे हो। सो रेनेसॉ एज एंड देन वी मूव फॉरवर्ड टू द रेस्टोरेशन एज। रेस्टोरेशन में आपको जॉन ड्राइडन के वर्क्स देखने को मिलते हैं, जहां से एज ऑफ ड्राइडन भी निकल के आता है। And then this is the period where you got to see the development of the novels, and novels are coming into line. पहले आपने देखा था कि बियोवुल्फ है सबसे पुराना वर्क which is again in the form of an epic. फिर आपको कुछ allegorical works देखने को मिले, delving into the motives of religious poetry, religious works, Caedmon's hymn. धीरे 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 करते करते अब हम आते हैं रेस्टोरेशन पर, जहाँ पे नॉवल एक तरीके से बहुत डेवलप हो रही है। और उसके बाद जब एज ऑफ एनलाइटनमेंट आता है which is again you know not
not very much specific to what has been said over all these years. थोड़ा सा scientific, थोड़ा सा rational approach ये लेकर चलता है Age of Enlightenment, and the name also says enlighten, है ना. And Augustan literature, जहाँ पे आप मिलते हैं पोप से, और इनके बहुत सारे essays हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इनके वर्क्स है, वन ऑफ द फेमस वर्क्स ऑफ पोप इज रेप ऑफ द लॉक, अगेन द सेम वर्क दैट वी कवर इन आवर अंडरग्रेड. इन्हीं के साथ साथ हमारे पास जॉनथन स्विफ्ट भी हैं. द फेमस वर्क इज गलिवर्स ट्रैवल्स, अगेन वी कवर द वर्क इन आवर अंडरग्रेड सिलेबस. गिव मी अ थम्स अप, अपन ने कवर किया है नहीं किया है, जरूर अच्छे से मुझे बताना. सो स्विफ्ट की क्या क्या आपको अप्रोचेस देखने को मिलते हैं. द वेरी रियल्म ऑफ मूविंग टुवर्ड्स दैट साइंटिफिक अप्रोच, रैशनल अप्रोच. आप देखते हैं गलिवर्स ट्रैवल्स में भी ऐसे बहुत सारी प्लेसेस हैं, बहुत सारे इस नॉवल में पार्ट्स आते हैं जहाँ पे लैबोरेटरीज को एक्सप्लेन किया गया है और उस अप्रोच से इसके ऊपर बात करी गई है. सो ऑगस्टन लिटरेचर के अंदर ये कुछ पीरियड आपका लाई करता है, विच अगेन इज ऑफ 1700 to 1750. मूविंग फॉरवर्ड टू रोमांटिक लिटरेचर, बट रोमांटिक और ऑगस्टन के बीच में एक एज है जिसे हम बोलते हैं प्री रोमांटिसिज्म. व्हेन यू नो रोमांटिसिज्म वाज कमिंग इनटू द कॉर्नर, तो अभी कभी भी एज का जो ट्रांजिशन है दैट इज नॉट अ वेरी सडन ट्रांजिशन दैट वुड हैपन ओवरनाइट. फॉर एग्जांपल व्हेन वी से दैट वी हैव मूव्ड टू रेनेसांस एंड देन वी हैव बीन मूविंग टुवर्ड्स रेस्टोरेशन, सो देयर इज नेवर अ सडन ट्रांजिशन. ट्रांजिशन कभी भी सडन नहीं होगा, कभी भी ओवरनाइट नहीं होगा कि आज एक राइटर लिख रहा है इस एज के अंदर, कल सुबह उठ के वो राइटर लिख रहा है अपनी नेक्स्ट एज के अंदर. There is a very gradual transition, there is a very gradual shift that you get to see in the works. Again, it is also dependent on the kind of the society that we have been living in right now, कि पहले ये रूलर थे, इस रिलीजन का ज़्यादा काम चल रहा था, ये बिशप्स थे, एंड देन धीरे 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 जैसे जैसे चीज़ें चेंज होती रहती है तो राइटर का जो पर्सपेक्टिव है, राइटर के भी जो नुआंसेज हैं, वो जो एक ऑब्जर्वेशन है वो भी चेंज होता है, एंड देन देयर कम्स अ स्पेसिफिक एज. सो प्री रोमांटिसिज्म में आपको एलिजीज देखने को मिली. फेमस है थॉमस ग्रे की एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, अगेन इट इज मेंशन्ड इन योर सिलेबस, अंडरग्रेड में हमने कवर किया है. पोइट्री ऑफ विलियम काउपर, ये भी हमने प्री रोमांटिसिज्म में देखा है. अब रोमांटिसिज्म तक आते आते आप देखेंगे कि यहाँ पे नेचर के ऊपर बहुत बात करी जाती है. द वेरी मैनिफेस्टो दैट हैज बीन रिटन फॉर द रोमांटिक एज इज विलियम वर्ड्सवर्थ लिरिकल बैलेड्स, जो हम सबने पढ़ा है. सैमुअल टेलर कॉलरिज का बायोग्राफिया लिटरेरिया, ये भी हमने कवर किया है, जिसके अंदर हम बात करते हैं एंटायरली द डिफरेंस इन प्राइमरी इमेजिनेशन एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन, है ना. ये पार्ट हम एक एक्सर्प्ट पढ़ते हैं अपना अंडरग्रेड के सिलेबस में. एंड देन व्हाट इज एक्चुअली द डिफरेंस इन फैंसी एंड योर प्राइमरी और सेकेंडरी इमेजिनेशन. सो व्हाट इज इट अकॉर्डिंग टू कॉलरिज, और व्हाट हैज वर्ड्सवर्थ कमेंटेड अपॉन द वेरी आइडिया ऑफ अ पोइट्री कि इट इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस एंड फीलिंग्स. मुझे याद है अंडरग्रेड में जब भी हमें ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता था, सबसे पहली लाइन इन आवर आंसर फ्रेमिंग वी यूज टू राइट दिस पर्टिकुलर लाइन कि एक इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़े सामने एक फैकल्टी के ऊपर. सो वर्क्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है. इनकी सारी की सारी पोइट्रीज आपके लिए बहुत जरूरी है, किसके अंदर क्या बात करी गई है, A to Z अपन को डिटेल में ये पता होना चाहिए. सेम सैमुअल टेलर कॉलरिज का वर्क भी आपको रोमांटिक पीरियड में देखने को मिलता है. इनके साथ साथ व्हाट एल्स यू गेट टू सी, यू गेट टू सी द वर्क्स ऑफ जॉन कीट्स, ओड टू नाइटिंगेल, बहुत सारे ओड्स लिखे हैं. P.B. शेली के वर्क्स देखने को मिलते हैं. ऑड ऑन अ ग्रेशियन अर्न से बहुत सारी लाइंस पेपर में भी आती थी, तब भी आती थी, अब नेट में भी आती हैं. लॉर्ड बायरन के क्वेश्चंस यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं. एंड द वेरी इमर्जेंस ऑफ गॉथिक जॉनरा. गॉथिक जॉनरा क्या है, जहाँ पे आपको एक ऐसा एटमोस्फेयर देखने को मिलता है वेयर देयर इज दिस एलिमेंट्स ऑफ हॉरर और टेरर. इसके साथ साथ और क्या देखने को मिलेगा आपको, वो कैसल्स देखने को मिलते हैं. एक डार्क नाइट एक्सप्लेन करी गई है. देयर इज दिस इमर्जेंस ऑफ अ मॉन्स्टर दैट हैज बीन देयर. सो मॉन्स्टर से एक नॉवल जो आपको याद आनी चाहिए वो होगा आपका शेली का फ्रैंकेस्टीन, आपके अंडरग्रेड में भी है. एंड आपका जो फ्रैंकेस्टीन वर्क है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर नेट पॉइंट ऑफ व्यू कि इसका नैरेटर कौन है, इसके अंदर क्या बातें करी गई हैं और इसके अंदर क्या क्या कैरेक्टर्स हैं. सो ये आपका गॉथिक नॉवल है. गॉथिक नॉवल गॉथिक जॉनरा से जो आपको एक नाम नहीं भूलना है वो है वॉलपोले का कैसल ऑफ ऑट्रांटो. ये भी आपने कहीं ना कहीं नाम से जरूर इस वर्क को भी सुना होगा. पर गॉथिक नॉवल फ्रैंकेस्टीन इज योर की पॉइंट. रोमांटिक पीरियड के अंदर आपको यही इमर्जेंस देखने को मिलती है. मूविंग फॉरवर्ड टू द विक्टोरियन लिटरेचर नाउ, वेयर क्वीन विक्टोरिया इज बीन रूलिंग एंड शी रूल्ड टिल 1901. 1837 से ये पीरियड शुरू होता है. अब विक्टोरियन लिटरेचर, द वेरी विक्टोरियन अटायर, इफ यू हैव सीन
lot of movies which revolve around the Victorian themes, and you have these a lot of dances with masks, with mask, and there are these lot of parties that have been introduced. For example, आपका जो Pride and Prejudice है, या फिर आपके और बहुत सारे वर्क्स हैं जहाँ पे आपको ये कुछ नैरेटिव्स देखने को मिल रहे हैं. एंड द वेरी फेमस एग्जाम्पल हियर इज द ब्रॉन्टेज सिस्टर्स, जिनके उनके जो वर्क्स आपको देखने को मिल रहे हैं. शार्लेट ब्रॉन्टे हैं आपका, 3 ब्रॉन्टे सिस्टर्स हैं, सारे के सारे वर्क्स आपके विक्टोरियन में आते हैं. बट यहाँ पे एक एज आपको, एक पीरियड आपको देखने को मिलता है विच इज ऑफ चार्ल्स डिकेंस. What Dickens used to do in this literature or in his works was to present the kind of the society that he's been actually seeing around. और क्योंकि ये एक age था which is the age of industrialization, and there were this lot of binaries that were created with the bourgeois, which is again your upper elite section, and your lower middle class, which is again here would be your working class section. जो working class है, जो proletariats हैं, उन पे जो एक तरीके से exploitation हो रहा है. और with this age of industrialization when everything is growing rapidly, but there is this one particular section जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा exploitation होता है. So again the very notion of the surplus that we talk about, कि जब हम कोई प्रॉफिटेबल कंपनी की बात करते हैं या हम एक सरप्लस की बात करते हैं कि धीरे 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 इस टेक्नो में, इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की एज में बहुत प्रॉफिटेबल चीजें होती जा रही है, तो वो क्या है, एक बाइनरी क्रिएट होता है दैट द रिच बिकम्स रिचर एंड द पुअर कीप्स ऑन बिकमिंग पुअरर एंड पुअरर. एंड दैट इज हाउ द सिस्टम हैज बीन फ्रेम्ड, द एंटायर बाइनरी डिस्कशन और द डिस्कोर्स दैट वी टॉक अबाउट. अगेन द वेरी इंट्रोडक्शन ऑफ कार्ल मार्क्स कम्स हियर. सो चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल्स में आपको वही कुछ देखने को मिलता है कि हाउ there's this exploitation of the working class, not just of particular women or the particular men of the society, but also of the children. So example, the kind of the novels that we come across is Oliver Twist, या फिर जो आपका क्रिसमस कैरोल, या आपका और आपका ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप में जो एक नैरेटिव है ऑफ ओल्ड ट्रेंट, द लिटिल नेल, तो वो भी आपको वहीं देखने को मिलता है. अगेन द वेरी फेमस वर्क दैट वी कम अक्रॉस इन चार्ल्स डिकेंस नॉवेल्स इज हार्ड टाइम्स, विच एक्चुअली टॉक्स अबाउट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म. अगेन वी हैव रेड दिस इन आवर अंडरग्रेड. हार्ड टाइम्स हमने पढ़ा है, जहाँ पे थॉमस ग्रैडगैंड बोलते हैं कि ऑल आई वॉन्ट इज फैक्ट्स, फैक्ट्स एंड फैक्ट्स. सो मे बी द नॉवल, सो द नॉवल एक्चुअली इज बीन डीलिंग विद द नोशन ऑफ फैक्ट्स versus what your heart says and what should we actually do, the entire notion of emotion, empathy, जो कि आपको वो facts वाले characters में नहीं देखने को मिलता है. So again the very headmaster or the school master has been acquainting or giving the entire description of horse कि इनकी ये tails हैं, ये हैं, वो हैं. But there is this another character who lives or who's been working in a circus, और जब वो एक horse का आपको description देती हैं, तो hard times में ये देखने को मिलता है that how there is this world which is divided into the world of fancy and facts. So Charles Dickens का hard times आपने cover किया है अंडरग्रेड में भी, but again very important work अपन को और डिटेल में इसको करना है. Then we have some of the poetries, जैसे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का है, रॉबर्ट ब्राउनिंग का है, पोर्फिरियास लवर है. ऐसे कुछ वर्क्स आपको विक्टोरियन लिटरेचर में देखने को मिलते हैं. मूविंग फॉरवर्ड टू योर 20th सेंचुरी एंड बियॉन्ड, विच इज द पीरियड ऑफ वर्ल्ड वॉर्स. अगेन वर्ल्ड वॉर द 1, वर्ल्ड वॉर द 2. सो मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर थोड़ा सा बहुत ही अलग है. इनका स्टाइल आप जो देखोगे, राइटिंग स्टाइल भी आप देखोगे, अगर यू हैव रेड, यस यू हैव रेड वुल्फ्स, यू हैव रेड वर्जीनिया वुल्फ्स, दिस वन वर्क which is a room of one zone. No, we do had this one work in our syllabus also. Orlando, I think, yes. I think Orlando was there in your masters, and Virginia Woolf, Mrs. Dalloway, yeah. Mrs. Dalloway का एक वर्क आपने अंडरग्रेड में जरूर पढ़ा होगा. एक थम्स अप जरूर देना, because when I was there, this was the work prescribed in the university. So even in the work Mrs. Dalloway also you get to see the technique of stream of consciousness, जहाँ पे हम एक fragmented थीम्स की बात करते हैं, द वेरी आइडिया ऑफ फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं, कि ऐसा नहीं है कि आपका एक लूप चल रहा है, दिस इज बिगिनिंग, दिस इज मिडल एंड दिस इज एंड, सो दैट इज हाउ द नॉवल हैज बीन ड्रॉन. नहीं, सो हाउ योर माइंड वर्क्स. आज भी आप मेरे साथ बैठे होंगे, या मैं भी जब बात कर रही हूँ, तो मेरे दिमाग में एक थॉट आ रहा है, इतने में फिर एक और नॉवल स्ट्राइक करती है, फिर इतने में एक और
पॉइंट स्ट्राइक करता है. सो अगेन द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, वेयर वट एवर इज देयर इन योर माइंड यू हैव बीन पोरिंग दैट डाउन इनटू योर नॉवल. आप उसमें कोई स्ट्रक्चर के बारे में नहीं सोच रहे हैं. इवन योर वन डे डिस्क्रिप्शन हैज बीन टर्न्ड इनटू अ नॉवल व्हिच इज देयर इनटू योर जेम्स जॉयसेस. तो यूलिसिस है, पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, आपके वर्जीनिया वुल्फ के वर्क्स हैं, ये सारे के सारे आपको इसी पीरियड में देखने को मिलते हैं वेर यू गॉट टू सी द इमर्जेंस ऑफ दिस टेक्निक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि we have been talking about this linearity. There is no linear narrative that has been followed here. तो कहीं ना कहीं बहुत वो जो सिगमंड फ्रॉइड का नैरेटिव है वो भी यहाँ पर आ जाता है. कहीं ना कहीं हम यहाँ पे बहुत ही साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव से भी बहुत बात करते हैं. सो मॉडर्निज्म में आते आते आपको यही देखने को मिलते हैं. द वेरी फेमस राइटर्स दैट वी हैव हियर इज वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयसेस, टी.एस. एलियट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट. एंड द वेरी फेमस वर्क दैट वी डू इज वेस्टलैंड, जो हम मास्टर्स में बहुत डिटेल में कवर करते हैं. सो I've had this great experience in my masters with this work, and we had this one faculty who legit took like 1 week or 2 weeks to actually discuss the entire poem of Eliot's Wasteland. Then we have D.H. Lawrence. D.H. Lawrence का भी हम वर्क पढ़ते हैं अपने अंडरग्रेड में, which is Sons and Lovers, जहाँ पे आपको मॉडल्स की फैमिली देखने को मिलती है. सो अगेन ये सब वर्क्स आपको मॉडर्निज्म में देखने को मिलते हैं, मॉडर्निस्ट पीरियड में देखने को मिलते हैं. अगर आपको ध्यान हो, इवन इन लॉरेंस सन्स एंड लवर्स ऑल्सो यू गेट टू सी द एक्सपीरियंस ऑफ द फैक्ट्री वर्कर्स, ऑफ द फैक्ट्री लाइव्स, how their hands and their whole body has been turned into coal dust. It's been filled with that. और मतलब जब घर से जा रहे हैं तो उनकी जो मदर है, वाइव्स है, वो अपना इतना आयरन करके क्लोथ्स को भेज रही हैं. दे हैव बीन ऑल नीट एंड क्लीन, बट व्हेन दे रिटर्न देयर शूज आर ऑल फिल्ड विद डस्ट एंड कोल. तो वो जो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस है आपको लॉरेंस के वर्क्स में देखने को मिलता है. एंड देयर इज दिस अनदर वर्क व्हिच इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ डाइग्रेशन, व्हिच इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ नॉट जस्ट स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बट या अ ग्रेजुअल शिफ्ट. और वहां पे आपको नैरेटर का बर्थ और जो कैरेक्टर है त्रिस्तम, उनका बर्थ देखने को मिलता है इनटू चैप्टर 13 एंड 14. उससे पहले आपको सिर्फ बातें करी गई हैं उन कैरेक्टर के ऊपर. तो वो जो टू एंड फ्रो नैरेटिव है वो आपको देखने को मिलता है लॉरेंस स्टर्न की नॉवल में, तिस्तम शांडी का जो हमारा वर्क है वहां पर. सो अगेन मॉडर्निज्म, एंड देन वी मूव फॉरवर्ड टू पोस्ट मॉडर्निज्म. पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है हमारा? अगेन वन स्टेप अहेड वेयर वी ऑल्सो टॉक अबाउट और वेयर वी डिसमेंटल द नैरेटिव्स. पोस्ट मॉडर्न नैरेटिव्स या लियोटार्ड जिन्होंने यहाँ पर बात करी है, इनक्रेडिबिलिटी टुवर्ड्स मेटा नैरेटिव्स, जहां पे हम सिर्फ वन सिंगल नैरेटिव की बात नहीं करते हैं. देयर आर लॉट ऑफ मल्टीपल नैरेटिव्स. अगेन द वेरी एस्पेक्ट ऑफ द फेमस वर्क दैट वी कम हियर इज योर जॉन फाउल्स फ्रेंच लेफ्टिनेंट वुमेन. पोस्ट मॉडर्निज्म बोलता क्या है कि यहाँ पे एक पर्सपेक्टिव रीडर का भी होना चाहिए. इट इज नॉट जस्ट द राइटर हु गेट्स टू राइट ऑल ऑफ दोज थिंग्स. एज अ रीडर ऑल्सो यू इंटरप्रेट सो मेनी थिंग्स. देयर इज दिस एंटायर डिफरेंट फिक्शनल वर्ल्ड दैट वी हैव इन आवर ओन माइंड्स. तो वहाँ पे अगर किसी नॉवल की हम एंडिंग कर रहे हैं, हो सकता है ऑथर का एक अलग पर्सपेक्टिव हो, बट दिस रीडर हैज अगेन अनदर डिफरेंट पर्सपेक्टिव वेयर वी ऑल द टाइम डोंट वांट अ हैप्पी और अ डेलिबरेट हैप्पी एंडिंग इन द नॉवल, जहाँ पे हमें खुद का भी कुछ चाहिए. तो वहां पे आपके पास आता है फ्रेंच लेफ्टिनेंट वुमेन, और जहां पे आपके पास आता है पोस्ट मॉडर्निज्म वेयर यू गेट टू चूज योर एंडिंग. तो वो एक ओपन एंडेड नैरेटिव है, एक क्लोज्ड एंडेड नैरेटिव नहीं है. और वो नॉवल जो है आपके लिए एक ओपन एंडेड है. एंड दिस वन टॉपिक दैट आई जस्ट टॉक्ड अबाउट टू डिसमेंटल ऑल द नैरेटिव्स, वो आपको देखने को मिलता है विंटरसन के सेक्सिंग द चेरी में, जो कि आपने अगेन अंडरग्रेड में पढ़ा है. Sexing the Cherry में भी जो आपको this one central character dog women you get to see how she dismantles all the binary narratives of what a masculine does, what a masculine gets to do and what feminine or being a female you get to do. So again doing the household chores, being this docile, being this very much delicate figure. But on the other hand dog women was a very powerful figure जो अपने हिसाब से चीज़ों को रन कर रही है. She is not just limited to domestic chores or this entire linear or this entire notion of a conventional marriage. She is not shown in that particular kind of a woman. So postmodernism जो है आपके ये धीरे धीरे जो एस्पेक्ट्स इनको डिसमेंटल करता है, इन बाइनरीज के ऊपर भी बात करता है. अगेन द वेरी फेमस एग्जांपल विंटरसन्स के ही आपके पास नॉवेल्स और इनके वर्क्स आते हैं. सो ये कुछ वर्क्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं. एंड अगेन द राइज ऑफ डायस्पोरा नैरेटिव्स, डायस्पोरिक नैरेटिव्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं. कंटेम्प्रेरी लिटरेचर की जब मैं बात करती हूँ, अगेन द पीरियड इज ऑल्सो नोन एज कंटेम्प्रेरी ओनली, जहाँ पे हम साइबॉर्ग लिटरेचर की भी बात करते हैं. अगेन द
literature where we have been talking about AI, where we have been talking about artificial intelligence, where we have been talking about cyber security, जहाँ पे novels के अंदर आपको एक dystopian world देखने को मिलता है through the emergence of technologies. तो आज के जो novels हैं वो आपको इस तरीके से देखने को मिलती है. There is this also the amalgamation or the inculcation of the other narratives apart from just the binary of male and female. You get to see the writings of the queer writers, LGBTQIA+ writers are also coming into the field. तो इन राइटर्स में जो आपके कैरेक्टर्स हैं, इन वर्क्स में जो आपके कैरेक्टर्स हैं, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक माइनॉरिटी सेक्शन है, वो सिर्फ पेरिफेरी पे दिखा दिया है. इवन माइनॉरिटी लिटरेचर इज ऑल्सो कमिंग इनटू द राइज. मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज आर नॉट जस्ट शोन ऑन द पेरिफेरी, दे आर ऑल्सो बिकमिंग द सेंट्रल कैरेक्टर्स. तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स में आज के लिटरेचर में हम बात करते हैं. एंड दिस होल लिटरेचर और दिस होल इवॉल्वमेंट, और हम बोल सकते हैं या अलग अलग लिटरेचर में जो जो काम हुआ, किस तरीके से एक प्रोग्रेस देखने को मिला, वो आपको इस टाइमलाइन को पढ़ के पता लगता है. सो या वी आर डन विद दिस. इसके साथ साथ आज मैं आपको कराऊंगी एंग्लो सेक्शन का थोड़ा सा डिटेल, बट इससे पहले जरूर मुझे बताना कि ऑल क्लियर और नॉट, इफ यू फेल्ट इट गुड, लग रहा है एक ब्रीफ रिविजन हो गया, कुछ चीजें अगर नहीं भी पता होंगी, सो विद द टाइमलाइन आपको थोड़ी बहुत पता जरूर लगी होंगी, है ना, that how we have come across this shift or the gradual turn that has taken place. कि ऐसा नहीं है कि Beowulf आया तो उसके बाद हमें कुछ पता ही नहीं है कि आया क्या है. And इसीलिए it is advisable to not just start with the age of Chaucer, Canterbury Tales, बल्कि उससे पहले से आपको पता होना चाहिए कि बीच बीच में कौन कौन से क्लब्स आते हैं, कैनिंग्स क्या होता है. ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके बेसिक को बहुत स्ट्रांग करती है. आपका बेस अगर एक बार स्ट्रांग बन गया, उसके बाद आप का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि एज ऑफ चौसर से आपसे पहले पूछ ले और आपसे आंसर नहीं हो. सो इट इज गुड, इट इज एडवाइजेबल टू जस्ट गो थ्रू द एंटायर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द टाइमलाइन फर्स्ट, है ना. ऑल क्लियर? चलिए जी, परफेक्ट. अब हम चलते हैं एंग्लो सेक्शन की डिटेलिंग्स के ऊपर. So before I actually talk about Anglo-Saxon, we should just move one step backwards and we should talk about what is or who are the original inhabitants of Britain. Something I feel that we have not actually been acquainted to even in our undergrad course, जहाँ पे हम बात करते हैं pre-Romans की, pre-Roman Britons की, तो जो कि आपकी एक Celtic tribes है. So Celtics is the term here which you get to see are the original inhabitants of Britain. तो ये जो Celtic culture है ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है. सेल्टिक ट्राइब्स आपको यहाँ पे देखने को मिली हैं, जहाँ पे आपको देखने को मिलता है बिफोर द रोमन कॉन्क्वेस्ट, मीन्स बिफोर द रोमन्स एक्चुअली केम इनटू द वे, ब्रिटेन वाज इनहैबिटेड. सो इनहैबिटेंट्स कौन है? सेल्टिक ट्राइब्स. सेल्टिक्स है विच इंक्लूड्स द ब्रिटन्स दैट आर देयर इन साउथ एंड पिक्स इन द नॉर्थ. तो काफी रिच कल्चर है. दे प्रैक्टिस एग्रीकल्चर. देयर आर दीज ट्राइबल किंगडम्स दैट यू गेट टू सी हियर. आयरन एज जो है ब्रिटेन के अंदर काफी डेवलपमेंट उन्होंने देखा है ऑफ हिल फोर्ट्स, एडवांस्ड मेटल वर्क, फॉर्म ऑफ राइटिंग जो है इस वक्त का वो औघम आपको यहाँ पे देखने को मिलता है. So lot of technological advancements, lot of social advancements that you get to see in this period. We didn't do modernism and postmodernism that much. Oh, okay. But when I was there, we had the particular course or the particular paper on modernism and particular paper on postmodernism, जहाँ पे कुछ ऐसे works थे, भिमायना भी था, और no, there was this popular literature also. But yeah, postmodernism में हमने French Lieutenants Women पढ़ा है. We have also read this one work, Beautiful Laundrette. Then we had this one, another work of Sexing the Cherry by your Winterson. Modernism में I think we have read Heart of Darkness, Virginia Woolf, James Joyce's this one work. कोई बात नहीं, हम यहाँ पे तो करेंगे. Moving ahead, we have these Celtics, जो Celtic tribes है, Celtic languages हैं, इनको हम बोलते हैं Insular Celtic language also. So सिर्फ इसको brief में करना है, कुछ ज़्यादा यहाँ पे ध्यान नहीं रखना है. आपको यहाँ पे Brittonic देखने को मिलते हैं, Brittonic, and we have Gaelic. So this is Gaelic और this is your Brittonic. These are the kind of languages that you get to see here, जिसे हम Brythonic भी बोल देते हैं. और जो आपका Gaelic है, which is also Goidelic, दो तरीके का है, वेस्टर्न और ईस्टर्न, और यहाँ पे नॉर्दर्न और आपका सर्दर्न. तो जो इंसुलर लैंग्वेजेस की मैं बात कर रही हूँ वो आपका इंसुलर, विच इज Goidelic और Brythonic. बस इतना ही याद रखना है और कुछ नहीं, कि आपका जो है पहले सेल्टिक ट्राइब था. ऐसा नहीं है शुरू से ही इंग्लिश वॉज द लैंग्वेज. इंग्लिश तो धीरे धीरे लैंग्वेज आया. इससे पहले आपकी ये ट्राइब्स थी और ये इनकी जो लैंग्वेजेस हैं वो ये आपको
देखने को मिलती थी कि ब्राइटॉनिक है और गेलिक है, ठीक है। देन वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू रोमन कॉन्क्वेस्ट और रोमनाइजेशन। अब ये क्या है, अब धीरे धीरे आप देखोगे कि रोमन्स स्टार्टिंग कमिंग इनटू द वे। पहले आपको देखने को मिला प्री रोमन ब्रिटेन, जहां पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास सेल्टिक ट्राइब्स हैं। रोमन ब्रिटेन होता है, आता है विद दिस रोमन कॉन्क्वेस्ट विच बिगिंस विद द ईयर 43 AD। सो रोमन्स लेड बाय दिस एम्परर कॉल्ड क्लॉडियस, he begins the conquest of Britain, and this conquest was gradually met, and they actually paved the way, they actually entered. So होता क्या है, रोमन ब्रिटेन रोमन कॉन्क्वेस्ट इट वाज ग्रेजुअली मेट, एंड रोमन इन्फ्लुएंस आपको बहुत देखने को मिलता है। सो बेसिकली जितने भी चीजें हैं सब ये कंट्रोल करने लग गए थे। कंट्रोल इन द सेंस बहुत सारा इन्होंने डेवलपमेंट पे भी काम किया। Development, they built towns, they did the urban planning, they introduced Christianity। एक अपनी जो है लास्ट लॉन्ग लेगेसी इन्होंने यहाँ पर छोड़ी इन टर्म्स ऑफ रोड्स, टाउन्स। सो बेसिकली बहुत सारा डेवलपमेंट भी किया है। और जब कोई एक तरीके से कोई मिशनरी भी जब आती है, जब आपने देखा है इवन अफ्रीकन लिटरेचर में, व्हेन देयर आर दीज क्रिश्चियन मिशनरीज दैट कम इनटू वे, स्पेशली इन योर वर्क ऑफ शिनुआ शबेज, तो आप देखते हैं कि जब वो मिशनरीज आती हैं तो किस तरीके से everybody is drawn towards that missionary, because first what they do, this in the realm of settling in, they start doing the developments, they start doing the positive aspects, they take the entire control की। तो वो जो natives हैं उनको भी लगता है कि अब हम इनके बिना कुछ नहीं कर पाएंगे। तो same happened here also when Romans arrived, there was this Roman influence, and there was this one particular point when economy was at its best because it was all in their control of the Romans। but एक point ऐसा आता है जहाँ पे they have been leaving the natives, तो वो होता है रोमन विड्रॉल विच हैपेंस इन 410 AD। जैसे ही वो एक विड्रॉल आपको देखने को मिलता है, रोमन्स अपनी जगह छोड़ के जा रहे हैं जो उन्होंने इतना काम किया है, जो अब सारे के सारे नेटिव्स इन पे इतना रिलाई कर रहे हैं, एकदम से एवरीथिंग हैज बीन फ्रेगमेंटेड। बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन भी आपको देखने को मिलता है। देयर इज दिस राइज ऑफ लोकल रूलर्स, और इसी वक्त पे व्हेन यू आर एट योर वीकेस्ट पॉइंट, और जब कोई जगह बना लेते हैं तो वो जगह बनानी बहुत आसान है, एंड दैट इज द पॉइंट वेयर एंग्लो सेक्सन इन्वेजन्स हैपेंड, जिसे आज हम एंग्लो सेक्सन पीरियड भी बोलते हैं। सो रोमन विड्रोल में रोमन्स विड्रू देयर लेजियंस फ्रॉम ब्रिटेन, लीविंग द रीजन्स वल्नरेबल टू invasions and internal strife, and then was the point when you got to see the Anglo-Saxons have invaded। तो जो रोमन का रूल है, यहाँ से इन्होंने बहुत सी चीजों पे काम किया। मैंने जैसे आपको बताया कि क्रिश्चियनिटी पे इंट्रोड्यूस करा उन्होंने, क्रिश्चियनिटी को यहाँ पर लेकर आए, एंड देन एवरीबडी स्टार्टेड बिलीविंग इन देम बिकॉज दे हैव डन अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट, टाउन्स, रोड्स, इनटू ऑल दीज स्ट्रक्चर्स। और फिर आपको एक पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेशन की वजह से वो जो एक वैक्यूम आ जाता है वहां पर, एंड वैक्यूम कम्स बिकॉज ऑफ द विड्रॉल दैट हैज बीन हैपेंड ऑफ द रोमन। सो रोमन्स जो हैं अपनी जगह यहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं। तो अब हम जब प्री एंग्लो सेक्सन ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, बिफोर वी जस्ट मूव डायरेक्टली टूवर्ड्स एंग्लो सेक्सन, तो हमने बात किया कि इंसुलर सेल्टिक लैंग्वेजेस हैं। पीछे मैंने आपको दिखाया जहाँ पे हमने ब्राइटॉनिक और गॉइडलिक, गेलिक और ब्रिटन्स की बात करी। और फिर आपको इस वक्त पे जब रोमन कॉन्क्वेस्ट आया, रोमन्स का आपको इन्वेजन देखने को मिलता है। सो लेटिन बिकेम द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बिकेम द लैंग्वेज ऑफ लॉ, बिकेम द लैंग्वेज ऑफ मिलिट्री, और इसी के साथ साथ ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड सम ऑफ द लोकल लैंग्वेजेस। बट इस वक्त पे आपको क्या देखने को मिलता है, दैट वी हैड द लेटिन एज अ लैंग्वेज विच वॉज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड मिलिट्री। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। मूविंग फॉरवर्ड टू द इन्वेजन नाउ, बिकॉज अगेन देयर एट द वीकेस्ट पॉइंट देयर इज दिस वैक्यूम दैट नीड्स टू बी फिल्ड। नेटिव्स को जो इतनी आदत हो गई थी रोमन्स की, एकदम से उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी है। तो अब कौन आ रहे हैं यहाँ पे, अब आपको एंग्लो सेक्सन्स देखने को मिलते हैं। सो व्हाट आर दे, हु आर दे, दीज आर द ग्रुप ऑफ ट्राइब्स, जिसे आप जर्मैनिक ट्राइब्स भी बोल देते हैं। तो नाउ दे हैव बीन ट्राइंग टू एंटर अपना प्रेजेंट डे जर्मनी, डेनमार्क, नीदरलैंड्स में ये आते हैं। इनके जो मेन ट्राइब्स हैं वो कौन सी हैं, एंगल्स, सेक्सन्स एंड ज्यूट्स। एंजल्स, सैक्सन्स एंड ज्यूट्स, ये आपकी तीन यहाँ पे मेजर ट्राइब्स हैं, एंड दे बिगेन माइग्रेटिंग टू ब्रिटेन इन द अर्ली 5th century। सो द वैक्यूम दैट नीडेड टू बी फिल्ड, दैट पावर दैट नीडेड टू कम इनटू द अदर्स हैंड्स वर डन बाय देम, एंड दे बिगेन फिलिंग द पावर व्हिच वाज लेफ्ट बाय द रोमन्स। और इसके साथ साथ इन्होंने अपने बहुत सारे किंगडम्स यहाँ पे एस्टैब्लिश किए, जिसे हम एक तरीके से हेप्टार्की भी बोलते हैं। व्हाट इज हेप्टार्की, जहाँ पे आपको 7 किंगडम्स देखने को मिलते हैं।
है ना। तो वो कौन कौन से आपके वेसेक्स, मर्सिया, नॉर्थम्ब्रिया, ईस्ट एंग्लिया और 2-3 जो है हम आगे पढ़ेंगे। तो इन किंगडम्स ने भी अपना काफी सारा डोमिनेंस यहाँ पे लाके रखा है। ऑल्सो द वेरी एलिमेंट ऑफ क्रिश्चियनिटी। सो सेंट ऑगस्टीन वॉज सेंट बाय पॉप ग्रेगरी द ग्रेट टू कन्वर्ट द एंग्लो सेक्सन्स टू क्रिश्चियनिटी। तो ये जो एस्टैब्लिशमेंट है ऑफ द कैंटरबरी कैथेड्रल विच वॉज द सेंटर ऑफ द क्रिश्चियन चर्च इन इंग्लैंड, एंड इट लेड टू द spread of education, spread of literacy, because they also talked about that, they also talked about this development. So Christianity का भी आपको यहाँ पे introduction देखने को मिलता है. So again when I talked about the heptarchy, 7 kingdoms, तो Anglo-Saxon kingdoms है, Germanic tribes, group of tribes, Angles, Saxons and Jutes, और Angles के अंडर आता है Mercia, East Anglia और Northumbria. Saxons है हमारा Wessex, Sussex और Essex, और Jutes में आता है हमारा Kent. So again your 7 kingdoms which is your heptarchy. ठीक है, तो जो एंग्लो सेक्सन एज है विच रिलाइज अबाउट 450 to 1066 AD, क्योंकि 1066 में आपको देखने को मिलता है नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, नॉर्मन्स हैव कम इनटू द वे. सो एंग्लो सेक्सन किंगडम्स कर लिया, ग्रुप ऑफ ट्राइब्स है जिन्हें हम जर्मैनिक ट्राइब्स भी बोल देते हैं, और इनके अंदर आपको ये पार्ट्स देखने को मिलते हैं. सो 3, 3, 6 और 1, 7 किंगडम्स हेप्टार्की. ठीक है, अब हम चलते हैं इसके मैप के ऊपर. तो नॉर्थम्ब्रिया हमने पढ़ा, हमने मर्सिया पढ़ा, हमने यहाँ पर वेसेक्स को पढ़ा, और ये जो हमारा एक लाइन है ऑफाज डाइक. सो दिस इज दिस ब्रिज जिसके इस पार क्या आता है आपका वेल्स, जिसके इस पार आता है आपका वेल्स. आप देखोगे जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, जो भी चेंजेस आ रहे हैं, वो सारे के सारे आपके इन वाले एरियाज में आ रहे हैं. आपका नॉर्थम्ब्रिया है, आपका मर्सिया है, आपका एसेक्स, वेसेक्स, स्यूजेक्स है, आपका केंट है, आपका ईस्ट एंग्लिया है. देयर इज दिस वन पर्टिकुलर किंगडम दैट हैज बीन लेफ्ट अनटच्ड. तो वो अनटच्ड है, तो जो उनके ट्रेडिशंस हैं वो आज भी यहाँ पे प्रिजर्व्ड हैं. सो दिस इज जस्ट वन एरिया जैसे हम बोल सकते हैं कि इनके ट्रेडिशंस इस वक्त तक प्रिजर्व्ड थे, बिकॉज वो एक ब्रिज आ गया तो किसी ने उसको टच नहीं किया. इस वॉल को हम क्या बोलते हैं, ऑफाज डाइक. इफ इन केस आपसे इस तरीके का कोई क्वेश्चन पेपर में पूछ ले तो आपको जरूर पता होना चाहिए. अच्छा, गिव मी अ सेकंड, आई एम गेटिंग अ कॉल फ्रॉम द टीम, सो आई विल जस्ट लेट देम इन्फॉर्म दैट आई एम इन द क्लास. परफेक्ट, ओके. सो ये हो गया हमारा. फिर से अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं, सो हियर इट इज मर्सिया, ईस्ट एंग्लिया, नॉर्थम्ब्रिया, वेसेक्स, स्यूजेक्स, एसेक्स, एंड देन वी हैव आवर केंट. तो ये सब हमने यहाँ पर देखा है. अब आप देखोगे ऑफाज डाइक है जिसे हम वॉल ऑफ डाइक भी बोल देते हैं, तो पता होना चाहिए दैट व्हाट इज द ऑफाज डाइक. तो ये एक हमारा ब्रिज है. ब्रिज के इस पार आपको वेल्स देखने को मिलता है जो कि अनटच्ड है, जिसके जो ट्रेडिशंस है वो इसीलिए फिर अभी तक प्रिजर्व्ड भी है. सो वेल्स हियर प्रिजर्व्ड देयर लैंग्वेज, प्रिजर्व्ड देयर ट्रेडिशन. अब जो आपका नॉर्थम्ब्रिया है, इसने बहुत काम किया लिटरेसी के ऊपर. बहुत यहाँ पे जो डेवलपमेंट हुआ इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी आपको नॉर्थम्ब्रिया में देखने को मिलता है. मर्सिया जो है वो पॉलिटिकली काफी एक्टिव था. सो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स पे आपको काफी चीजें देखने को मिली. ऐसा अगर एक क्वेश्चन आ जाए दैट व्हाट इज दिस मेजर डायलेक्ट, जहां पे मेजॉरिटी ऑफ द वर्क्स लिखे गए हैं, तो आपने भी इसका नाम जरूर सुना होगा जिसे हम बोलते हैं वेस्ट सैक्सन. तो जो वेस्ट सैक्सन है ये आपका एक मेजर डायलेक्ट है. दिस इज दिस वन ऑफ द मेजर डायलेक्ट जहाँ पे मोस्टली आपको जो वर्क्स हैं वो देखने को मिलते हैं. और वेल्स एक ऐसी जगह है जो आपके ट्रेडिशंस है वो उसको अभी तक प्रिजर्व करके रखती है. क्यों मैं रिपीट कर रही हूँ, याद हो जाएगा कि नॉर्थम्ब्रिया इज नोन फॉर लिटरेसी, मर्सिया इज नोन फॉर द पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकली ज्यादा एक्टिव है. और फिर आपके पास वेस्ट सेक्शन आता है, द मेजॉरिटी ऑफ द वर्क्स हैव बीन रिटन इन दिस डायलेक्ट. फिर एक वेल्स आता है जो ब्रिज के इस पार है, जो इस वॉल के इस पार है. तो इसीलिए जो भी नई चीजें आ रही थी, नए किंगडम्स आ रहे थे, नए ट्रेडिशंस बन रहे थे, उनका इन्फ्लुएंस इस पे नहीं पड़ा. कहने का मतलब है नेटिव्स अपने वही ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करके रख रहे थे. सो दैट इज व्हाट वेल्स डज फॉर यू. तो ये कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है. अब आप देखोगे यहाँ पे कि एंजल्स का प्रोमिनेंस यहाँ पे इतना ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है इन जर्मैनिक ट्राइब्स के अंदर दैट दे सेटल्ड डाउन इन ब्रिटेन ओवर एंड ओवर, एंड दिस इवॉल्व्ड एज इंग्लैंड. सो एंजल्स की लैंड को हम पहले बोलते थे एंजल लैंड. तो जब आप इसे लिखते भी हैं तो आप इसे इस तरीके से लिखते हैं, which is again the etymology of angel land. Angel land का etymology ये है, और फिर which is the land of the angels, and धीरे धीरे it evolved as England. धीरे धीरे it evolved as England. So that is how
England came into the way. That is how Angel's Land became England. ये थोड़ा बहुत चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए. Then moving forward, अब एंग्लो सेक्सन इन्वेजन हुआ. देन वी हैड दिस लिटिल वाइकिंग इन्वेजन इन 8th to 11th सेंचुरी. वाइकिंग इन्वेजन में क्या होता है, ये पूरा का पूरा जो है रेड मारते हैं इंग्लैंड के ऊपर, विच अगेन रिजल्ट्स टू अ लॉट ऑफ डेविस्टेशन. ग्रेट हीथन आर्मी अराइव्स एंड किंग एल्फ्रेड द ग्रेट, हु इज द किंग एल्फ्रेड ऑफ वेसेक्स, ही हियर डिफीटेड द एंटायर किंगडम, ही प्रोटेक्टेड द एंटायर किंगडम, जहां से धीरे धीरे आपको देखने को मिलता है किंग एल्फ्रेड बिकम्स द रूलर एंड उनके अंडर बहुत सारे वर्क्स हुए हैं. और आने वाले लिटरेचर्स में जो हम आगे लिटरेचर पढ़ेंगे उसमें भी आपको देखने को मिलेगा देयर आर लॉट ऑफ आर्थुरियन रोमांसेस या ऐसी टेल्स जो आपको देखने को मिलती हैं. और इसका सबसे ज्यादा तो जो वल्नरेबल बेड्स है एक्लेसियास्टिकल ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर, वो भी इसके ऊपर काफी बात करते हैं. और पूरा का पूरा ये जो आपका हिस्टोरिकल पार्ट है, बेद यहाँ पे काफी कुछ मेंशन भी करते हैं. बट आर्थुरियन रोमांसेस का रीटेलिंग भी आपको आगे वाली नॉवेल्स में देखने को मिलेगा. बट यहाँ पे यू गेट टू सी द इमर्जेंस ऑफ किंग एल्फ्रेड द ग्रेट, हु इज दिस ग्रेट फिगर. बहुत सारे मिलिट्री अचीवमेंट्स हैं इनकी. ही डिफीटेड और he has taken part in the defense against Vikings, fortifications और नेवी में इन्होंने काम किया है. बहुत सारे पॉलिटिकल लीगल रिफॉर्म्स ये लेकर आए. कल्चरल एजुकेशनल एस्पेक्ट्स पे भी इन्होंने बहुत बात करी है. सो जो लेगेसी है इनकी, ही हियर इज रिगार्डेड द फर्स्ट ट्रू किंग ऑफ द इंग्लिश. सो ये कुछ छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है. किंग एल्फ्रेड को हम एल्फ्रेड द ग्रेट भी बोलते हैं. कल्चरल इम्पैक्ट पे इन्होंने काफी यहाँ पे काम किया है. अगेन द वेरी टॉक ऑफ रिलेटेड टू एजुकेशन. किंग एल्फ्रेड के बहुत सारे नाम जो आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे, जैसे हम एपिथेट बोलते हैं ना. So Alfred the Great, king of the West Saxons or king of the Anglo-Saxons, he has spent years of fighting Viking invasions and he has won in the Battle of Edington. So this fight or this victory has been named the Battle of Edington, जहाँ पे फिर एक agreement आपको देखने को मिलता है with the Vikings, जहाँ से इंग्लैंड को फिर डिवाइड कर दिया गया कि ये एंग्लो-सैक्सन टेरिटरी है और ये वाइकिंग्स है. तो उस अग्रीमेंट को हम बोलते हैं डेन लॉ. अब ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है कि डेन लॉ क्या होता है, वॉल ऑफ डाइक क्या होता है, ताकि पता लगता रहे कि एक्चुअली में हम बात क्या कर रहे हैं. तो आप देखोगे कि उन्होंने लीगल एस्पेक्ट्स पे, मिलिट्री एस्पेक्ट्स पे, नेवी फोर्टिफिकेशन पे बहुत काम किया है. ही इज बीन अ रूलर, ही हैज फाइटेड इन अ लॉट ऑफ एरियाज. इसी के साथ साथ लिटरेचर में जो काम किया है, ही हैज आल्सो वर्कड एज अ ट्रांसलेटर की तरह काम किया है ऑफ ग्रेगरीज क्यूरा पेस्टोरलिस, जिसके अंदर आपको एक बिशप की ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्क्राइब करी गई हैं. तो एज अ ट्रांसलेटर काम किया. फिर ट्रांसलेशन किया यहाँ पे हिस्टोरिया एडवर्जम पैगनॉस का. अगेन ये ओरोशियस पॉलियस ओरोशियस का वर्क है, उनका वर्क ट्रांसलेट किया. फिर यहाँ पे वल्नरेबल बेद का जो वर्क है उसको ट्रांसलेट किया है. एंड देन देयर वाज दिस क्रॉनिकल दैट वाज रिटन ड्यूरिंग हिज रेन, ड्यूरिंग हिज पीरियड, व्हिच इज द राइटिंग ऑफ द एंग्लो-सैक्सन क्रॉनिकल. और इनको एक एपिथेट भी दिया है जिससे हम बोलते हैं द ग्रेट इन द 16th सेंचुरी, जो मैं आपको बोल भी रही थी कि इनके बहुत सारे एपिथेट्स भी हैं. ठीक है, दैट इज ऑल्सो योर लिटरेरी टर्म ऑफ द डे. Moving forward to your four main dialects that were there, Northumbrian, Mercian, Kentish और West Saxon. हम बात भी कर रहे थे कि यहाँ पे नॉर्थम्बरिया लिटरेसी का पार्ट, मर्सिया हमने बात किया पॉलिटिकली एक्टिव. फिर केंटिश और वेस्ट सेक्सन. वेस्ट सेक्सन इज योर मेजर डायलेक्ट दैट हैज बीन स्पोकन. ठीक है, इतना समझ आ गया क्या? फटाफट से बता दूं. दिस इज एंग्लो-सैक्सन्स फॉर यू, वाइकिंग इन्वेजन्स फॉर यू. इसके बाद फिर हम चलते हैं 1066 नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के ऊपर, जो कि मैं आज बात नहीं करूंगी वरना बहुत ज्यादा हो जाएगा. आज इतनी बातें नहीं करेंगे, एक ब्रीफ देखते हैं बस. तो आप देखोगे कि सेल्टिक ट्राइब्स हैं, रोमन्स केम इनटू द वे. फिर हमने पढ़ा कि रोमन्स का विड्रॉल हो गया है. रोमन्स का विड्रॉल हुआ है तो अभी बहुत सेंसिटिव है, एक वैक्यूम है जिसको फिल करने की जरूरत है, जहां पे फिर एंट्री होती है एंग्लो-सैक्सन की. तो जो अपनी ट्राइब्स यहाँ लेकर आ रहे हैं, जर्मैनिक ट्राइब्स, एंड दे हैव बीन ट्राइंग टू सेटल डाउन. फिर धीरे धीरे आपको डेवलपमेंट देखने को मिलता है एंग्लो-सैक्सन सोसाइटी का. उसके बाद उसके कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपको देखने को मिलता है वाइकिंग्स का इन्वेजन. वो रेड अब वहां पे पड़ रही है, जहां पे देयर इज दिस एस्टैब्लिशमेंट ऑफ
डेन लॉ। डेन लॉ क्या है? जो एक अग्रीमेंट कर दिया है इनटू दोज टेरिटरीज एंड डिवाइड ऑफ इंग्लैंड, जहां पे हम एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेन लॉ बोलते हैं, जहां से किंग अल्फ्रेड द रूलर कम्स इनटू द वे, किंग अल्फ्रेड द ग्रेट कम्स इनटू द वे, जहां पे अल्फ्रेड ने बहुत सारे रिफॉर्म्स यहाँ पर लेकर आए हैं और फिर रिकॉन्क्वेस्ट होता है डेन लॉ का। उसके बाद आप देखते हैं नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जो 1066 में होता है, एंड फिर देयर इज दिस एंटायर कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन दैट हैपेंस। पूरा का पूरा जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो डोमिनेट करता है, किस तरीके से फ्रेंच कल्चर रिफॉर्म्स आपको देखने को मिलते हैं, जिसके ऊपर हम कल बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। एक बार मुझे बता दो इतनी चीजें क्लियर है क्या, सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। परफेक्ट, ओके, ठीक है देन। तो आज हमने यही बातें किया। अब नेक्स्ट सेशन में अपन करेंगे कि एंग्लो सेक्सन लिटरेचर किस तरीके का हमें दिखता है, क्या क्या एंग्लो सेक्सन लिटरेचर के अंदर हो रहा है। उसके साथ साथ फिर अपन बात करेंगे नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के ऊपर, ठीक है। आज नहीं करते हैं, अदरवाइज इट वुड बी अ लॉट। इतना जरूर रिवाइज करना। देखो एक बार मेरे साथ साथ रिवाइज कर लोगे तो आपका कवर हो जाएगा, एंड आई होप यू गॉट टू लर्न सो मेनी न्यू थिंग्स फ्रॉम दिस सेशन, बिकॉज अगेन वी आर नॉट वेरी मच एक्वेंटेड विद आर हिस्टोरिकल पार्ट। और लिटरेचर को समझने के लिए चाहे वो ब्रिटिश हो या अमेरिकन हो, हिस्टोरिकल पार्ट बहुत अच्छे से करना आना चाहिए, ताकि आपको पता लगे कि मार्क्सिज्म के ऊपर हम कब बात कर रहे हैं, वो बूर्जुआ प्रोलेटेरियात के ऊपर कब बात करी गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन की एज कब आ रही थी, व्हेन देयर वाज दिस टाइम व्हेन पेस्टोरल्स वर बीइंग रिटन, शेफर्ड्स की बातें हम कर रहे थे, हम नेचर की बातें कब कर रहे हैं, जो ये बहुत सारे एडवांसमेंट्स होती हैं टेक्नोलॉजिकल साइंटिफिक, वो किस पीरियड में हुई। तो ये छोटी छोटी चीजें पढ़ने के लिए स्क्रैच क्लियर होना बहुत जरूरी है, विच इज योर सेल्टिक ट्राइब, विच इज योर एंग्लो सेक्सन्स। ब्रिटिश लिटरेचर का पूरा सेंट्रल पार्ट कि इंग्लैंड नाम कहाँ से आया, इंग्लिश हमारा कब आया, ओल्ड मिडिल इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश पीरियड में डिफरेंस क्या है, ये आपको ये टॉपिक ये सेशन कवर कराएगा। सो आई होप दैट वाज फ्रूटफुल फॉर यू। चलिए देन एंड करते हैं सेशन को। होमवर्क आपका यही है कि जितना अपन ये किया है इसके ऊपर थोड़ा सा खुद से आप पढ़ लें। अगर आपके पास रूटलेज है, वेल डन, ग्रेट। अगर रूटलेज वाली किताब आपके पास है, बिल्कुल आप उसमें से पढ़ सकते हो, मेरे साथ साथ चल सकते हो। सो व्हाट आई लाइक टू डू इन माय सेशंस इज, एंड इन माय प्रीवियस बैचेस आल्सो, बट आई हैव बीन मोस्ट इंटरेस्टेड इन कि आप साथ साथ में रूटलेज वाला किताब लेकर रखो, जो मैंने आपको कल के सेशन में दिखाया था। एंड जिस तरीके से हम प्रोसीड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आज हम जो है अब धीरे धीरे एज ऑफ चौसर पढ़ेंगे, तो आप भी रेस्टोरेशन से एज ऑफ चौसर कवर कर लो। ये बहुत ही एक ब्रीफ में दिया हुआ है सब, बट ब्रीफ में साथ साथ में बहुत ही डिटेल्ड तरीके से दे रखा है। तो आपका एक फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन के लिए ये वर्क बहुत काम आएगा। हम लोग तो बहुत डिटेल्ड में चीजें पढ़ेंगे, एंड देन उसी को एक कंसाइज तरीके से देखना, वो आपको रूटलेज वर्क दिखाता है। सो साइड बाय साइड आप मेरे साथ रूटलेज भी पढ़ सकते हो, आपका बहुत पार्ट कवर हो जाएगा, बिकॉज रूटलेज भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, मैं भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ाऊंगी। सो काफी एक अच्छा सिंक आपको देखने को मिलेगा। एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स स्टार्ट रीडिंग योर ग्लॉसरी टर्म्स। जो आपका एमएच अब्राम्स का वर्क है उसको बेसिक्स से स्टार्टिंग के पहले पेज से शुरू कर दो, चाहे कुछ समझ आए कि नहीं आए, बट ठीक है, विल जस्ट रीड ऑन इट। तो ये कर सकते हैं आप दिन के 2 से 3 टर्म्स। आज का जो आपका लिटरेरी टर्म है वो है एपिथेट, ठीक है, आज इसके ऊपर देखना है एपिथेट। सो मेरे साथ एडिशनल होमवर्क करना बहुत जरूरी है, कुछ नहीं जाएगा, इट्स जस्ट 30 मिनट्स वर्क, तो इतना तो आप स्पेंड कर ही सकते हैं, ठीक है। ओके देन, चलिए एंडिंग द सेशन। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, विल सी यू टुमारो ऑन द सेम टाइम। बिल्कुल सेम टाइम पर अपन मिलेंगे 12:30।